اگر آپ سول سائڈ میں دیکھیں گے, آپ کرمنل سائڈ میں دیکھیں گے, نارکوٹکس کے کیسز دیکھیں گے, ہر جگہ جج صاحب کی انپٹ بطور وکیل کے اور بطور جج کے آج کا جو ججمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہوں گے, تو بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا ہماری اس فیلڈ میں. اور یہ ہماری ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے, ہماری ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری بھی رہے, اور اسی شہر سے, اسی بار سے انہوں نے وکالت, جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے ایسے ہی انہوں نے آغاز کیا. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ کے اندر ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں, ممبران بار کونسل بیٹھے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ. اور نارکوٹکس کا ٹاپک ہے, بہت ان ڈیپتھ ان کا نالج ہے, اس حوالے سے آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے. آپ کل بھی جسٹس اعظم خان صاحب ہمارے وہ سیشن جج بھی رہے یہاں, آج کل ہائی کورٹ میں وہ جج ہیں, وہ بھی آئیں گے. بہت سارے دیگر ججز کو بھی ہم نے انوائٹ کیا, انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ویک میں وہ بھی آپ کو لیکچر دیں گے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا کہ یہ جو جج صاحب کا ایکسپیرینس ہے 30 سال کا, 28 سال کا, 32 سال کا, یہ جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ آپ کو 1-1.5 گھنٹے میں وہ آپ کو ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اگر گریسپ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, آپ نہیں گریسپ کریں گے, تو پھر ہماری ایکسرسائز فوٹائل ہوگی, اور وہ جو ڈویژنل بینچ میں جو کیسز لیفٹ اوور ہوئے اس کا بھی بار ہمارے اوپر ہوگا. تو اس لیے آپ بی اٹینٹو اور آپ کیجیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وائس چیئرمین آصف عرفان صاحب کا, وہ تشریف فرما ہوئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر کھوکر صاحب کا, ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں, وہ تشریف فرما ہوئے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سفر سیکھنے کا, سکھانے کا یہ جاری ساری رہے گا. تو میں بلا تعطل گزارش کروں گا جسٹس انعام امین مناز صاحب, جج اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ وہ آئیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ تیسرا لیکچر ہے موسٹ پروبلی یہاں پہ آنے کا مجھے موقع ملا, اور مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی ہوا کہ یہ جو ہمارے ینگ آنے والے لوگ ہیں, جب میں لیکچر ختم کیا جب بھی میں نے, تو انہوں نے بہت اچھی کوشچننگ کی اور انڈرسٹینڈ کیا. تو میں نے بھائی صاحب کو کہا کہ نارکوٹکس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹاپک ہو تو اس پہ بھی میں لیکچر دوں گا, لیکن انہوں نے کہہ دیجیے آپ نارکوٹکس پہ دیں, کیونکہ نارکوٹکس میں پچھلے 2014 سے لے کے 2024 تک ایلیویشن تک میں ایز اے چیف پراسیکیوٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس کام کرتا رہا. 10 سال سپریم کورٹ میں پورے پاکستان کے جتنے بھی کیسز ہوتے تھے چاروں صوبوں کے, وہ ڈیل کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے تھوڑا ایکسپیرینس تھا اور یہ کام کرتے رہے. سب سے پہلے نارکوٹکس, ابھی آپ بالکل نئے ہیں, ابھی آپ جب کورس میں جائیں گے تو نارکوٹکس کے بارے میں آپ کو جنرل آپ کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے, آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ذرا مجھے بتائے کہ آپ کا کیا کانسیپٹ ہے نارکوٹک کے بارے میں. واٹ از نارکوٹکس؟ ڈرگ ریلیٹڈ جتنے میٹرز ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے بتائیے گا. جی سر, ڈرگ ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہوں گے وہ نارکوٹکس کے اندر فال کریں گے. آپ بیٹا بتائیے گا کیا ہے آپ کا کانسیپٹ, کیا ہے نارکوٹکس کے بارے میں؟ ڈرگ ہو گیا, اور اس طرح کے جتنے بھی اسموک سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈرگس اور یہ چیزیں ہیں, الکوہل اور ڈرنک, اس میں ڈفرینٹس آ جاتی ہیں, ان سب سے ریلیٹڈ جو بھی میٹرز ہوں گے وہ نارکوٹکس. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. بیسیکلی نارکوٹکس ایکٹ جو 1997 ہے, اس سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی سب کانٹیننٹ میں جب برٹش ادھر تھے تو انہوں نے ایک اوپیم ایکٹ بنایا تھا 1857 کا, 85-87 کا. وہ اوپیم ایکٹ جو تھا اس میں اوپیم ہی ڈیل کی جاتی تھی, اور اس ایکٹ کے مطابق پاکستان بننے تک وہی ایکٹ چلتا رہا, اور اسی کے مطابق ہم کرتے رہے جتنی بھی ڈرگز ہیں. اور اس وقت ڈرگز کیا ہوتی تھی آپ سنتے ہوں گے, حشیش, اوپیم, اور یہ چھوٹی چھوٹی نارکوٹکس ہوتی تھی. اس وقت اتنی زیادہ نارکوٹکس کی کائنڈز نہیں تھی. ود دا پیس آف ٹائم یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی پوری دنیا میں. تو 1961 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک کنونشن کیا, سنگل کنونشن کے نام سے 1961 ہے, پوری دنیا کا. اس میں یہ پرابلم ہوا کہ نارکوٹکس جو ہے وہ انہوں نے انٹرنیشنل سبجیکٹ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے.
اس کے لیے کنونشن ہوا اور ساری دنیا کی کنٹریز نے ایک کنونشن 1961 کا بنایا. انہوں نے کہا جی کہ نارکوٹکس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نارکوٹکس ایسی ہے جس کے لیے آپ میڈیسن بناتے ہیں, کچھ ایسی ہے جو آپ کے لیے ہارمفل ہوتی ہے, تو اس کے لیے انہوں نے ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. لیٹس سپوز آپ کی جو میڈیسن بنتی ہے تو اس میں بہت سارے کیمیکل ہیں استعمال ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پاکستان کا بہت فیمس کیس سنا ہوگا, ایفیڈرین کیس. اب جو ایفیڈرین ہے بیسیکلی یہ کیمیکل ہے اور یہ کیمیکل یوز ہوتا ہے آپ کے میڈیسن میں, اور ایفیڈرین کو پوری دنیا میں کنٹرول جو کیا جاتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کرتی ہے, اور ہر ملک کا اس کی پاپولیشنز کے مطابق کوٹا فکس کرتی ہے. پاکستان کے لیے کوٹا ہے, انڈیا کے لیے کوٹا ہے, ہر پوری دنیا کے لیے, اور پھر اس کوٹے کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کو ہم نے 10 ٹن دیے اس میں سال کے لیے, تو پھر وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. تو یہ سملرلی وہ ڈرگ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, مختلف دوائیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے وہ استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہی ایفیڈرین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے سنتھیٹک ڈرگ بنانے میں. جو آپ کی ہیروئن ہے وہ اوپیم کے ساتھ مل کے ایفیڈرین کو مکس کر کے تو ہیروئن بنتی ہے. یہ مطلب کیمیکلز ہیں اس کے, اور اس چیز کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے یہ کنونشن آیا 1961 کا, اور انہوں نے جو میڈیسنز میں یوز ہوتی تھی ڈرگس اور کیمیکل اس کو علیحدہ کر دیا, الاؤ کر دیا, اور وہ بھی کنٹرول کے ساتھ. جو باقی تھی انہوں نے کہا جی یہ ڈرگ ہے, اور اس کے کنٹرول کے لیے انٹرنیشنل کارپوریشنز یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے. اب پاکستان میں ایسا اوپیم ایکٹ تھا, لا نہیں تھا اس طرح جس طرح پوری دنیا میں چل رہا تھا. 1980 میں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر کوڈیفائڈ لا بنائیں جیسے باقی دنیا میں چل رہا ہے. اس کے بعد یہ آرڈیننس آیا 85 میں, اور نارکوٹکس بورڈ بنا. ہمارا سب سے پہلے پاکستان میں نارکوٹکس بورڈ بنا منسٹری آف انٹیریئر کے اندر, اور وہ بورڈ اسے کنٹرول کرتا تھا. سبسیکوینٹلی وہ بورڈ کنورٹ ہوا, اور 1995 میں پہلی دفعہ ہمارا ایک ایکٹ آیا نارکوٹکس, یہ جو ابھی آپ کا لا ہے نارکوٹکس ایکٹ 1995 آیا. اس کو بھی کچھ چیزیں اس میں کمپریہنسو کرنے کے لیے دوبارہ اس کو امینڈ کیا گیا, اور پریزنٹلی آپ کا 1997 کا جو نارکوٹکس ایکٹ ہے یہ اپلیکیبل ہے. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے آپ کو پتا ہو کہ نارکوٹکس کا اب اس وقت آپ کا جو لا اپلیکیبل ہے وہ اوپیم ایکٹ جو ہے وہ ریپیل ہو گیا ہے, اور اب یہ ڈیل کرتا ہے 1997 کا ایکٹ کا. وہ اس میں اوور رائڈنگ افیکٹ ہے. اوور رائڈنگ افیکٹ مینس کہ اگر کوئی اور لا نارکوٹکس کا ہے بھی تو اپلیکیبل لا جو ہے وہ آپ کا نارکوٹکس کا ہوگا اگر وہ ریپیل نہیں بھی ہوا تو. اس لا کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صرف سمپل ڈیل نہیں کرتا نارکوٹکس کو کہ صرف ایک بندے کے پاس نارکوٹکس ہے تو اس کو آپ 9C BC میں آپ FIR درج کریں گے, اور FIR درج ہونے کے بعد ٹرائل چلے گا اور کنوکٹ ہو جائے گا. نارکوٹکس میں سب سے پہلے نارکوٹکس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ نارکوٹکس کی جو پوزیشن ہے دیٹ از کرائم. کہ یاد رکھیے گا نارکوٹکس میں نارکوٹکس کا جو پوزیشن ہے وہ کرائم ہے. سیکشن 6 اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس پوزیشن کے ساتھ نارکوٹک کو کیری کرنا وہ بھی کرائم ہے, اس کو ٹرانسپورٹ کرنا وہ بھی کرائم ہے, اس کو سیل کرنا وہ بھی کرائم ہے. تو فنڈامنٹلی آپ اگر دیکھیں گے تو سیکشن 6 میں اینی پرسن ہو از ہیونگ دا پوزیشن آف نارکوٹکس ڈائریکٹلی ہی از چارج انڈر سیکشن 6, تو اسے نارکوٹکس میں کرائم کہتے ہیں. اب وہ پوزیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی فزیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ انکانشیس بھی ہو سکتا ہے, کانشیس بھی ہو سکتا ہے اور انکانشیس بھی ہو سکتا ہے. اب نارکوٹکس کا جو پوزیشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کبھی آپ پریکٹس کریں گے, آپ کورس میں جائیں گے, آپ ٹرائل کریں گے, تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز ڈسبلیو کرانی پڑے گی کہ یہ پوزیشن جو تھا یہ ایکیوز کے پوزیشن سے نہیں نکلا, یہ کسی گاڑی کی ڈگی میں سے پڑا ہوا تھا, کسی سیکرٹ کیوٹی میں تھا, کسی جگہ کے اور جگہ پہ پڑا ہوا تھا, کسی کی چھت پہ پڑا ہوا تھا. تو لہٰذا ڈائریکٹ پوزیشن نہیں ہے. یہ ایک میجر ڈیفینس ہوتا ہے آپ کا, جو آپ لیں گے آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو پوزیشن ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ پوزیشن ہے.
पोजेशन के बाद यहाँ मैं आपको आपकी फिर कन्विक्शन आती है. अब जो पोजेशन है जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपका ट्रायल चलता है CNS कोर्ट में. ये एक स्पेशल लॉ है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं. सेक्शन 48 वो डील करता है. फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं अंडर दिस एक्ट, उसे नारकोटिक्स कोर्ट्स कहते हैं. और CRPC जो है प्रोसीजरल लॉ है, वो सारा एप्लीकेबल है. इस नारकोटिक्स एक्ट में 1997 में प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको अडॉप्ट किया हुआ है कि आपने रिकवरी कैसे करनी है, आपने सीजर मेमो कैसे बनाना है, आपने चालान कैसे सबमिट करना है, आपने ट्रायल कैसे कंडक्ट करना है, आपने कन्विक्शन करनी है. तो वो सारा प्रोसीजर CRPC वाला है. लेकिन ऑफेंसेस जो हैं वो नारकोटिक्स एक्ट 1997 के मुताबिक है. इसमें सेक्शन 9 में पनिशमेंट है. स्टार्ट में जब ये एक्ट बना उस वक्त पनिशमेंट थी 9A, B and C. A, B and C. अब A में थी आपकी क्वांटिटी जी, अगर एक 100 kg से ग्राम से ऊपर हो जाए तो उतनी है. फिर अगर 500 ग्राम और 1000 ग्राम से ऊपर हो तो लाइफ होती थी. लाइफ और डेथ बड़ा सीरियस था. और उसमें ये होना शुरू हो गया कि डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा आ गई आपकी कोर्ट के पास. कोई अदालत 500 ग्राम में बंदे को 4 साल दे देती थी, कोई लाइफ दे देती थी. तो डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा आई, फिर डिस्क्रिपेंसीज भी बहुत ज़्यादा आई. ये 9A, B और C की ये चलता रहा बहुत अरसा तक. लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आ गई है. रिसेंटली जो अमेंडमेंट आई है उसमें लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2009 लाहौर है 380. उसमें चीफ जस्टिस खोसा साहब ने एक जजमेंट दी थी कि जितनी भी नारकोटिक्स हैं उसकी सज़ा इक्वल नहीं होनी चाहिए. हर नारकोटिक्स का अपना सब्सटेंस है, उसका डेंजर का लेवल डिफरेंट है. अगर आप चर्स पकड़ेंगे तो उसका डिफरेंट है, हेरोइन पकड़ेंगे तो डिफरेंट है, आइस पकड़ेंगे तो उसका डिफरेंट है. तो लिहाजा आपने अगर हेरोइन की भी 1000 ग्राम पे डेथ देनी है और इसकी ओपियम की भी देनी है तो ये इक्वल नहीं हो सकता. तो उन्होंने उस जजमेंट में प्रपोज की पनिशमेंट कि जी अगर आपके से चर्स पकड़ी जाएगी 1000 ग्राम तो उसकी ये पनिशमेंट होनी चाहिए. तो एक टेबल बना दिया. तो वो बहुत अरसा चलता रहा. 2009 से लेके ये 2020-21 तक वो यही चलता रहा. सब्सिक्वेंटली जब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए तो उन्होंने वो जजमेंट इम्प्लीमेंट करवाई और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एग्जैक्टली उसी जजमेंट को परस्यू करते हुए लेजिस्लेशन कर दी. और अब जो है स्लैब्स डिफरेंट हो गए. अब अगर आप देखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी 1000 ग्राम, 200 ग्राम, 1000 ग्राम से 500 ग्राम, 500 ग्राम से 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से ये 10 kg तक चला. डिफरेंट है इनको 1 kg, 2 kg, 4 kg, हर किलोग्राम की डिफरेंट पनिशमेंट है. ये बेसिकली क्वांटिटी बेस्ड पनिशमेंट है. आपकी जितनी क्वांटिटी निकलेगी, जितना वेट होगा उसके मुताबिक आपकी वो पनिशमेंट. तो अब स्लैब्स डिफरेंट आ गई है इसमें. अब आप देखेंगे कि ये जो नारकोटिक्स है इसको सिर्फ आप ये ना समझें कि पोजेशन डील करता है. इस सारे लॉ में जब इंसान कन्विक्ट हो जाता है इसमें तो इसके दूसरे जो चैप्टर्स हैं वो डील करते हैं प्रॉपर्टी पे. अगर कोई बंदा भी 3 साल से ज्यादा कन्विक्ट हो जाए तो फिर कोर्ट के पास पावर है कि उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज की जाती है और अल्टीमेटली वो कन्फिस्केट हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट के. अब एक बंदा कन्विक्ट होता है, कन्विक्शन के बाद उसका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है. वो है उसकी प्रॉपर्टी का, एक्यूज की प्रॉपर्टी, उसकी रिलेटिव की प्रॉपर्टी, उसके बच्चों की प्रॉपर्टी, उसके वाइफ की प्रॉपर्टी, उसके एसोसिएट की प्रॉपर्टी, उसके पार्टनर्स की प्रॉपर्टी. अगर ये साबित हो जाए जो बंदा कन्विक्ट हो गया है तो वो सारी फ्रीज कर दी जाती है इस लॉ में. और फिर फ्रीजिंग का एक पूरा मैकेनिज्म है. अब ये नहीं है कि आप कन्विक्ट हो गए तो आपको एक शो का नोटिस दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, आपने नारकोटिक्स के सोर्स से बनाई है. तो फिर उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स होती है और अल्टीमेटली वो सारी प्रॉपर्टी जो आपने बनाई होती है वो प्रिज्यूम की जाती है कि आप
कि वो चली जाती है साहब, ना कि कन्विक्शन होती है, आपकी प्रॉपर्टी भी सब्जेक्ट मैटर है इसमें, सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है। सिमिलरली जब ये कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में कन्विक्ट होता है तो उसकी भी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर बन जाती है यहाँ पे। ये लॉ में है, इंटरनेशनल म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं हमारे, और स्टैट्यूट में है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान के भी और बाकी पूरी दुनिया के। ये लॉ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये देखा होगा कि इस लॉ में सिर्फ वो 9C नहीं है, ये इंटरनेशनल डिफरेंट चैप्टर है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से स्मगल करता है नारकोटिक्स किसी भी मुल्क में, ABCD में, तो अगर स्मगलिंग पकड़ी जाती है उस मुल्क में और उनको पता चलता है कि ये ओरिजिन पाकिस्तान है और पाकिस्तान से पता नहीं चलता कि किसने भेजा है, तो उसमें लॉ में है एक पूरा चैप्टर है जिसे हम कहते हैं कवर्ड ऑपरेशन। वो कवर्ड ऑपरेशन ये है जो आप नॉर्मल मूवीज में भी देखते होंगे, उसमें उस स्टेट की और पाकिस्तानी स्टेट की आपस में एग्रीमेंट होता है और इन्वेस्टिगेशन में आप बताते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये लेके जा रहा है पाकिस्तान से, तो उसको म्यूचुअली असिस्ट किया जाता है अंडर कवर। उसको एयरपोर्ट पे फैसिलिटी दी जाती है कि चला जाओ, उधर से भी दी जाती है, उसको 3-4 चक्कर लगाते हैं और फिर पूरा गैंग पकड़ा जाता है। ये अलाउड है लॉ में, CNS एक्ट में, और ये यहाँ पे करते भी हैं बहुत सारे, आप देखते होंगे आप मूवीज में, ये लॉ में भी होता है, इसमें भी है। उसकी रीजन ये है कि ये क्राइम एक जगह कमिट नहीं होता, इस क्राइम्स की जो डायमेंशन है वो इंटरनेशनल है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग अफगानिस्तान में हो सकती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में होगी, यहाँ से ईरान होगी, ईरान से यूरोप चली जाएगी, यूरोप से पूरे यूरोप में फैल जाएगी। अब उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में आता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन 1961 में इस लॉ में म्यूचुअल असिस्टेंस का पूरा चैप्टर है कि अगर इस तरह का कोई क्राइम कमिट होता है तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को असिस्ट करेगी उस अक्यूज को पकड़ने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने के लिए और उसकी कन्विक्शन के लिए। और वो हमारा लॉ मौजूद है, उसमें बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बाहर कन्विक्ट होते हैं पाकिस्तानी, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कन्विक्ट हो जाती है, कुछ लोग यहाँ पे कन्विक्ट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बाहर में, अगर कोई बाहर वाला बंदा यहाँ पकड़ा जाता है, लेट्स सपोज कोई भी किसी दूसरे मुल्क का पकड़ा जाता है, तो अगर यहाँ पे कन्विक्ट होता है तो फिर हम उसके मुल्क में लेटर लिख के भेजते हैं कि ये बंदा यहाँ पे कन्विक्ट हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज की कोई डिटेल्स हैं हमें बताएं, वो हमें बताते हैं, फिर हम फिर उन्हें भेजते हैं, तो फिर वो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक उसको कन्फिस्केट करते हैं। हमारे इस एक्ट में ये है कि अगर कोई बंदा बाहर कन्विक्ट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी लेट्स सपोज इस्लामाबाद में, तो उसमें सेक्शन 40 डील करता है। सेक्शन 40 की एप्लीकेशन जो एजेंसी है, अब एजेंसीज में एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी है, पुलिस भी है जो नारकोटिक्स को डील करते हैं, और उसके कस्टम वाले भी हैं, उनके पास पावर भी है, वो भी सीज करते हैं। और ये सेक्शन 40 की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जाती है और हाई कोर्ट उसको इंक्वायरी करके उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको फिर कन्फिस्केट करती है। तो ये लॉ जो है ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव और इंटरनेशनल इम्पैक्ट वाला लॉ है। ये वो नहीं है कि जो आप नॉर्मली देखते होंगे, शायद आपको इसमें अभी आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस लॉ में तो इसकी पोजीशन, अब सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का काम ये होता है कि उसने पोजीशन साबित करना होता है। अगर आप से नारकोटिक्स निकलती है तो प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू एस्टैब्लिश द एक्सक्लूसिव पोजीशंस ऑफ अ पर्सन, कि ये इसके पोजीशन से निकली है। उसके लिए नॉर्मली लॉ में आपने देखा होगा कि CRPC में कोई भी चीज रिकवर होती है तो उसका एक रिकवरी मेमो बनता है। उस मेमो में जो चीज रिकवर होती है उसको मेंशन किया जाता है और उसके साथ 2 विटनेसेस रखे जाते हैं। CRPC में यह है कि अगर आप 103 CRPC जो है उसमें यह है कि अगर पब्लिक प्लेस है और कोई रिकवरी पुलिस करती है, FIA करती है, NAB करती है, तो दे विल हैव टू एसोसिएट प्राइवेट पर्सन्स, वहाँ के लोकल्स
अगर किसी मोहल्ले से होती है तो मोहल्ले के 2 बंदे, फिर किसी पब्लिक प्लेस पे होती है तो 2 बंदे पब्लिक के। आपने रिकवरी को स्टैब्लिश करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस डालने होते हैं, लेकिन यहाँ पे नारकोटिक्स में नहीं है। यहाँ पे 103 एक्सक्लूड कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि आप प्राइवेट बंदा नहीं, पुलिस या नारकोटिक्स एनएफ के जो भी पुलिस होगी, पुलिस के जो विटनेस है वो सफिशिएंट है सेक्शन 25 में। नॉर्मली आप भी देखते होंगे कि अक्सर आप कोर्ट में भी आएंगे तो आप भी यही बात करेंगे कि सर इसमें तो पब्लिक नहीं, विटनेस कोई भी नहीं है, पब्लिक विटनेस एप्लीकेबल ही नहीं है इस लॉ में। उसके पीछे रीजन ये है कि जब कोई नारकोटिक्स पकड़ी जाती है, ड्रग डीलर पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ नॉर्मली माशरे में कोई भी बंदा आके बयान नहीं देता, दुश्मनी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो लेजिस्लेचर ने इसको दूर करने के लिए डायरेक्टली कर दिया कि पुलिस के 2 विटनेस काफी है। अब जो पोजेशन है जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हो, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अभी इंटरप्रिटेशंस में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है कि पोजेशन फिजिकल भी होता है और कॉन्शियस पोजेशन भी होता है। एक बंदा वो लाहौर से कराची ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी में नारकोटिक्स रखता है और उसको मोबाइल देता है और नारकोटिक्स रख के उसे कहता है कि ये तुम लेके जाओ लाहौर से कराची। अब वो लाहौर बैठा टेलीफोन पे उसको कंट्रोल कर रहा है, आप इस मोटरवे से जाओ, इधर से वो करो, इस तरह करो, और वो उसे जाके डिलीवर करता है। ये बंदा 2 इसमें क्राइम्स हो जाते हैं, 2 बंदे हैं, एक वो जो ड्राइवर है जो डायरेक्ट फिजिकल पोजीशन में है, एक वो बंदा जो फिजिकल पोजीशन में नहीं है लेकिन उसके कॉन्शियस में है, उसकी नॉलेज में है कि इसमें नारकोटिक्स जा रही है और वो नारकोटिक उसके कंट्रोल में और वो डिलीवर करा रहा है। इसे कॉन्शियस पोजीशन कहते हैं। ये एक्सेप्शन है, अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पे ये कॉन्शियस पोजीशन पे ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये प्रूव हो जाता है कि जी ये नारकोटिक्स फलां जगह से आई। वो बंदा मौके पे नहीं होता, ड्राइवर पकड़ा जाता है, वो बयान देता है, फिर आप उसकी सारी शहादत, इसे कहते हैं कॉन्शियस पोजीशन। अब यहाँ पे पहले नहीं था, लेकिन अब कोर्ट्स देखती हैं कि इसका कॉन्शियस पोजीशन था कि नहीं था। नॉर्मली ये भी होता है कि एक बंदा लेट्स सपोज सोया हुआ है किसी पुलिस रेलवे स्टेशन पे और एक दूसरा बंदा आता है और नारकोटिक्स का थैला उसके पास रख के भाग जाता है और पुलिस आती है पीछे से और वो देखती है कि ये पड़ा हुआ थैला जो हम देख रहे हैं, वो बंदा उठता है तो थैला रिकवर हो जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या उसका पोजीशन कॉन्शियस होगा? होगा सोया हुआ है उसे, ये डिफरेंट है। आपने कॉन्शियस पोजीशन जब आप बात करते हैं तो कॉन्शियस पोजीशन में यू विल हैव टू शो कंट्रोल कमांड ऑफ दैट पर्सन, ऑल्दो ही इज नॉट होल्डिंग द फिजिकल पोजीशन, लेकिन कंट्रोल एंड कमांड उसकी है। एक गाड़ी उसकी इस्तेमाल हो रही है, वो बता रहा है, वहां पे बैठा नहीं है, कहीं और बता रहा है, मान लीजिए मनूवर कर जाए, ये इसका कॉन्शियस पोजीशन कहते हैं इसको। फिर इसमें नॉर्मली क्योंकि बहुत सख्त कानून है, अगर आप पकड़े जाएं, अगर आप कोई बंदा पकड़ा जाता है तो 2 विटनेसेस आते हैं और रिकवरी शो करते हैं और उसके बाद वो कन्विक्ट हो जाता है। डिफेंस में बड़ा मुश्किल है इसको प्रूव करना। इस पे हमारी कोर्ट्स ने और पूरी दुनिया की कोर्ट्स ने इसकी इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले वो चीज़ें, वो प्रिंसिपल ले डाउन नहीं हुए थे। वो यही कहते थे ठीक है जी पोजीशन है, आपके पकड़े गए, कन्विक्ट हो गए। इसमें फिर प्रिंसिपल ले डाउन हुए। सबसे पहला प्रिंसिपल ले डाउन हुआ सेफ कस्टडी वाला और सेफ ट्रांसमिशन वाला। अब ये जब भी नारकोटिक्स पकड़ी जाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाउंड है कि वो इस नारकोटिक्स को मौके के ऊपर सील करेगा, उससे सैंपल लेगा और उसके बाद वहां से सील पार्सल और सील प्रॉपर्टी को लेके पुलिस स्टेशन आएगा और पुलिस स्टेशन आके मर्डर को देगा। तो ये एक चैप्टर बनता है सेफ ट्रांसमिशन का, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस टू द पुलिस स्टेशन। ये है सेफ ट्रांसमिशन। फिर इस नारकोटिक्स को आप भेजते हैं सेफ कस्टडी से निकाल के लेबोरेटरी में, और जब लेबोरेटरी में भेजते हैं तो फिर थाने से लेके लेबोरेटरी तक का जो सफर है
اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ دس از آلسو سیف ٹرانسمیشن. آپ کو اس ساری سیف ٹرانسمیشن کو ثابت کرنے کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد آپ کے محرر کی اسٹیٹمنٹ, اور جو لے کے جاتا ہے آپ کی نارکوٹکس کو, یہ آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہے. اسے کہتے ہیں پرنسپل آف سیف ٹرانسمیشن. اور یہ جو پرنسپل ہے یہ PID 2012 سپریم کورٹ امیر زیب کیس ہے. اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پہ, خوسا صاحب کی بڑی الیبوریٹڈ ججمنٹ ہے, پوری دنیا میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اس میں انہوں نے سیف ٹرانسمیشن اور پھر سیف کسٹڈی کا دوسرا پرنسپل ہے کہ آپ نے نارکوٹکس جو ریکور کی ہے, اگر 2 kg ریکور کی ہے تو یہ 2 kg جب تک یہ ایگزبٹ نہیں ہوتی کورٹ میں, اس کی کسٹڈی کس کے پاس رہی اور انڈر وٹ سرکمسٹانسز یہ کس جگہ پہ رہی, اسے کہتے ہیں سیف کسٹڈی. اس کے لیے محرر مارخانہ جو ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہی ہے, اور یہ سیف کسٹڈی کا پرنسپل آپ ثابت کرتے ہیں. اگر پراسیکیوشن سیف کسٹڈی سیف ٹرانسمیشن فیل ہو جاتی ہے آپ ہماری فورس کوئٹ کر دیتی ہے اسی ایک پرنسپل کے اوپر. کوئی ایک بھی چین, اگر سیف کسٹڈی نہیں ہے اور سیف ٹرانسمیشن نہیں ہے تو آپ کا کیس جو ہے وہ بری کر دیتے ہیں کہ جی یہ ڈاؤٹ فل کیس ہے. تیسرا اس میں پرنسپل امیر زیب کیس میں ہی پرنسپل لے ڈاؤن ہوا کہ اگر 10 kg ریکور ہو جاتی ہے تو 10 kg کا اگر ایک ہی بنڈل ہے تو اس میں سے آپ سیمپلنگ لیتے ہیں, سیمپلنگ کرتے ہیں. وہ جو سیمپلنگ ہے اس کو کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو سیمپل. اگر آپ کے پاس 10 kg پکڑی گئی ہے اور 10 اس کے آپ کے پاس اس کے بلاکس ہیں نارکوٹکس کے, تو ریپرزینٹیٹیو سیمپل کا پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے 10 سیمپل میں سے 10 ہی ریپرزینٹیٹیو سیمپل لینے ہیں. اسے کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو سیمپل, اور وہ آپ نے کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیج دینے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 10 سلیب نکلے, کسی ایک سلیب میں سے لے لیا اور باقی 9 میں سے نہیں لیا, اور کہ یہ بھی 10 kg ریکور ہوئی ہے. تو پھر بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ نے تو ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل لیا ہے, تو لہٰذا اگر ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل جو ہے اس کی 1 kg ویٹ تھا, باقی 9 kg نہیں کنسیڈر ہو گئے. تو یہ امیر زیب میں پہلی دفعہ کنسیڈر ہوا, اس میں بھی بہت سارے بلاکس سے پکڑے گئے, ریپرزینٹیٹیو سیمپل ایک ہی ہوا اور ہر سیمپل علیحدہ ہوگا. اسے کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو سیمپل کا کانسیپٹ. اب اسی میں اور زیادہ مزید انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کچھ کیسز میں ایسا ہوا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے سیمپل سارے لیے اور وہ سارے سیمپل اکٹھے کر دیے, اکٹھے کر کے لیبارٹری میں بھیج دیے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کنسالیڈیٹڈ سیمپل کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہوگا, سنگل سیمپل ہوگا اور وہ کورسپونڈ کر رہا ہوگا جس سے لیا ہے. اگر وہ آپ نے لیٹ سپوز 100 kg ریکوری ہوئی ہے اور 100 سلیبس ہیں 1-1 kg کی, آپ نے 100 سیمپل لیے اور اس کو آپ نے مکس کر دیا اور ایک سیمپل بنا کے لیبارٹری میں بھیجا, تو پھر ایک سیمپل کنسیڈر ہوگا, پھر وہ ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل 1 kg کے ہوگا. یہ بیسک فنڈامنٹل امیر زیب کیس میں بھی یہ بھی پرنسپل لے ڈاؤن ہو گیا کہ کنسالیڈیٹڈ سیمپل نہیں ہوگا, آپ کو ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ٹرائل میں یہ چیزیں آپ کو, آپ جب کل آئیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے. آپ ان چیزوں پہ یہ بڑا آپ نے غور کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں ریپرزینٹیٹیو سیمپلنگ ہوئی ہے یا کنسالیڈیٹڈ ہوئی ہے, اس میں سیف کسٹڈی ہے کہ نہیں ہے, اس میں سیف ٹرانسمیشن ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد وقت 2018 میں آ کے سپریم کورٹ نے اس کو اور تھوڑا سخت کر دیا کہ آپ نے پنش کرنا ہے کسی کو تو جو ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہے اور جو کیمیکل ایگزامینر رپورٹ ہے وہ سمپل کیمیکل ایگزامینر رپورٹ نہیں ہونی چاہیے. کہ آپ کیمیکل ایگزامینر رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سیمپل آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ فلاں نے آ کے ریسیو کرایا جس میں 10 پارسل تھے, جس میں یہ تھا آفٹر ایگزامینیشن اٹ واز فاؤنڈ چس ہیروئن دیٹس آل, یہ لکھا جاتا تھا. 2018 میں آ کے سپریم کورٹ ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ ریپرزینٹیٹیو سیمپل کے بعد جو کیمیکل ایگزامینر رپورٹ ہے اس میں ڈیٹیل آف پروٹوکول ہونی چاہیے. اگر پروٹوکول نہیں لکھیں گے تو اس کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اور اگر کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا تو سارا کیس پروسیکیوشن کا ختم ہو جاتا ہے.
तो वो उन्होंने डिटेल ऑफ प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन ने कहा हुआ कि किसी भी नारकोटिक्स को जब आप एनालिसिस करते हैं केमिकली तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसमें केमिकल का एक प्रोसीजर है, वो आपने प्रोसीजर सारा लिखना है। अगर नहीं लिखेगा केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में तो वो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं है। ये प्रिंसिपल ले डाउन हुआ उसमें, नारकोटिक्स में भी चलता रहा। उसको फिर उन्होंने थोड़ा सा माइल्ड अप किया कि चले अगर डिटेल में बिल्कुल माइन्यूट ना भी लिखें लेकिन 4 इंग्रेडिएंट मस्ट लिखें कि ये प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हुआ यूनाइटेड नेशंस का, इसमें कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए और इसका रिजल्ट उसके बाद क्या है। ये 3 चीजें आप बड़ी डिटेल में लिखी जाती हैं, इससे पहले नहीं थी। ये इंटरप्रिटेशन से कन्विक्शन के लिए, क्योंकि लॉ बहुत सख्त है जिसमें कोई भी रिलीफ अक्यूज को नहीं मिलता, तो इंटरप्रिटेशन करके नारकोटिक्स में ये प्रिंसिपल अब ले डाउन हो गए। इसके अलावा जब बंदा कन्विक्ट हो जाता है तो इसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है, स्पेशल जज की, वो दी भी सकती है उसकी। और इस लॉ में एक सेक्शन है 48, कोई भी ऑर्डर जो पास करेगी स्पेशल कोर्ट वो अपीलेबल है। इसमें ये नहीं है कि आप रिवीजन फाइल करेंगे, आप रिट फाइल करेंगे। अगर स्पेशल जज ने आपने सुपरदारी का ऑर्डर किया है तो आपने सुपरदारी की अपील फाइल करनी है। उसमें आपके लिए वो रिवीजन नहीं है, क्रिमिनल रिवीजन नहीं है, ना ही आप रिट फाइल करेंगे। उसमें ईच एंड एवरी ऑर्डर इज अपीलेबल। कन्विक्शन का ऑर्डर भी, एक्विटल का ऑर्डर भी, सुपरदारी का ऑर्डर भी, आप समनिंग ऑफ विटनेसेस का ऑर्डर भी, जो भी ऑर्डर आप करेगा स्पेशल जज उसमें अपील, डायरेक्ट अपील फाइल करेंगे। अब ये मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिए जो इस वक्त प्रेजेंटली को ऑब्जर्व कर रही है और देख भी रही है। इसके अलावा नारकोटिक्स के लॉ में अगर आप बाकी चीजें देखेंगे, अब नारकोटिक्स में डिफरेंट काइंड्स आ गई, पहले नहीं थी। अब सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक आ गई। अब सिंथेटिक वो है जो आपके आर्टिफिशियल चीजों से बनती है, जिसमें आइस है, जिसमें वीट है, ये वो है। अब इसकी बहुत सारी काइंड्स आ गई हैं। अब हुआ ये है कि जब ये बहुत सारी काइंड्स आना शुरू हुई तो नारकोटिक्स में इनिशियली तो 3-4 मेन चीजें थी, हेरोइन है जी, ये चर्स है जी, ये ओपीम है, ये चीजें थी, और कुछ केमिकल थे जो नोटिफाई थे कि ये ऑफेंसेस हैं। अब ये इतना रैपिड हो गया है कि लॉ में ये चीज अमेंड कर दी गई है कि ये सिंथेटिक ड्रग्स किसी वक्त भी गवर्नमेंट नोटिफाई करके इन्हें क्राइम डिक्लेयर कर देगी कि ये प्रोहिबिटेड है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो आप सिंथेटिक ड्रग्स का जो और नॉन सिंथेटिक ड्रग अगर आप जाके देखिएगा, टेबल देखिएगा तो वो बहुत बड़ा है। और ये सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक ड्रग जो है ये वो यूनाइटेड नेशंस पहले डिक्लेयर करती है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए इंडेंजर है और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, लिहाजा इसको वो डिक्लेयर करते हैं तो हम इमीडिएटली इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और नोटिफाई करके वो शेड्यूल में डाल देते हैं। अगर आप आज एक्ट देखेंगे जाके तो उसमें आप देखिएगा शेड्यूल है, उसमें केमिकल के शेड्यूल हैं, बहुत सारे केमिकल हैं जो आप देखते होंगे। ये हमारा स्वीप जो साफ करने वाला है ये भी उसमें इंक्लूडेड है, ये भी नारकोटिक्स में इंक्लूडेड है। इसकी ज्यादा मिकदार मिल जाए तो पकड़ते तो इसके ऊपर भी FIR हो सकती है। तो ये सारे केमिकल आपको मिलेंगे उसके शेड्यूल में और उसकी डिफरेंट काइंड में। लिहाजा ये वो आप उसको नहीं देखिएगा कि अब ड्रग सिर्फ वो हेरोइन ही थी, आपको बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है और बहुत सारी काइंड्स आ गई है इसकी। इसके अलावा नारकोटिक्स में आपको ट्रायल का तो कंप्लीट हो गया कि ये 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है कि पोजेशन है, ट्रांसमिशन है, सेफ है, कस्टडी है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग है और प्रोटोकॉल जो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है। ये 4-5 चीजें आप लिख लें और आप जब भी अपना केस बनाएंगे और आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इनमें केस आपका फॉल करता है कि नहीं करता, कहीं पे कोई मिस्टेक है, इसी से आपका ट्रायल भी होगा। सिमिलरली इसमें सेक्शन 51 डील करता है नारकोटिक्स में आपका बेल का। बेल जो है नारकोटिक्स केसेस में बहुत रेयर नॉर्मली दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिफरेंट व्यू भी है। अभी नॉर्मल जो 497 के प्रिंसिपल हैं वो
पिछले 4-5 सालों से जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि 497 के जो फर्दर इंक्वायरी का प्रिंसिपल है वो नारकोटिक्स में नहीं एप्लीकेबल, वो आप नहीं उसमें नहीं कह सकते जी ये फर्दर इंक्वायरी है। यहाँ पे है कि फिट केस, सेक्शन 51 में जो लिखा हुआ है, इफ कोर्ट थिंक्स इट्स अ फिट केस फॉर ग्रांट ऑफ बेल देन दे कैन ग्रांट द बेल, अदरवाइज नहीं। इसमें फिर अगेन बेल इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपको बेल रेयर मिलती है, आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको ये बेल दे। लेकिन 51 रेड में सेक्शन 497 अब कुछ जजमेंट्स आ गई सुप्रीम कोर्ट की जिसमें उन्होंने कहने की कि कुछ प्रिंसिपल जहाँ पे कोई बेनिफिट मिलता हो उसमें आप दे दें तो वो अप्लाई कर सकते हैं आप 497 की फोर्स दे भी देंगे। इसके अलावा इस सारे इश्यूज के ऊपर आप देखेंगे सुपरदारी इस लॉ में सेक्शन 74 डील करता है। अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो अक्सर इसमें सुपरदारी भी, अगर गाड़ी पकड़ी जाए और उस गाड़ी की सीक्रेट कैविटी से अगर कोई नारकोटिक्स रिकवर होती है तो उसकी नहीं दी जाती, आपको सुपरदारी मिल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लॉ है। अगर वैसे निकल आया, अगर सीट पे पड़ा हुआ है और वो मालिक जो गाड़ी का है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसने किराए पे दी हुई थी और उसे कोई मांग के लेके गया था, तो वो जो ओरिजिनल मालिक है उसको सुपरदारी दी जा सकती है। ये मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप कल जब कोर्ट्स में आए, आपका सब्जेक्ट जिसका क्रिमिनल का होगा, अगर नहीं भी होगा तो स्टार्ट में आपको ये केस करने पड़ते हैं, आप करें सीखें। और ये वो सब्जेक्ट है जो बहुत रेयरली आपको टाइम मिलेगा इसको इतना डेप्थ में देखने का। आप बहुत चंद चैप्टर होंगे जो आप देखेंगे, अदरवाइज बाकी तो शायद आप खोले भी नहीं क्योंकि जरूरत नहीं होती आपको। फिर कन्फिस्केशन कैसे होती है, प्रॉपर्टी किसी की कन्फिस्केट होती है तो वो कैसे होती है, नॉर्मली आपका सिर्फ बेल और ट्रायल क्या था, लेकिन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसके अलावा बाकी आपके कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा। जी जी पाकिस्तान नहीं है तो हम उनकी जहाँ का वो सिटीजन है वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन है वो हमारी स्टेट के पास उसका बेनिफिट आता है या वही स्टेट वो स्टेट लेगी जिस स्टेट के पास है। हमारे पास भी केसेस थे, मैं खुद करता रहूँ बीइंग प्रोसिक्यूटर जनरल, कि हमारे पास इंग्लैंड के कुछ लोग, कोई दूसरे कंट्रीज के लोग जो कन्विक्ट यहाँ पे होते थे तो हमें वो बताते थे कि जी ये प्रॉपर्टीज हैं, तो वो फिर जो प्रॉपर्टी उनकी यहाँ होती थी वो हम कन्फिस्केट करते हैं। सिमिलरली रेसिप्रोकली वो जब हम बताते हैं तो वो उसकी उन्हीं की कोर्स करती है, वो नहीं करते। सर मिनिमम कितना टाइम होगा कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फर्दर जो है वो क्राइम में आएगा या पर्सनल यूज के लिए होगा, तो उसमें भी क्या लॉज अप्लाई होंगे सेम? हमारे यहाँ पर्सनल यूज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ड्रग्स का। आप नारकोटिक्स को पर्सनल यूज के लिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो 50 ग्राम तक भी, एक सिगरेट भी अगर पकड़ा जाए या आपका कोई भी क्वांटिटी पकड़ी जाए तो उसकी पनिशमेंट मौजूद है। लेकिन सर आइस का जैसे आपने बात की तो आइस इज प्रिवेलिंग डे बाय डे फॉर पर्सनल यूज, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज, तो उसके लिए फिर क्या कौन से यही लॉज अप्लाई होगा इस पे? बिल्कुल यही लॉ होता है। उसके अलावा नॉर्मली अब होता ये है कि अगर किसी भी जगह के अगर कोई ड्रग एडिक्ट पकड़ा जाता है तो ड्रग एडिक्ट के लिए CNS एक्ट में पूरा एक चैप्टर है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट ने बनाने हैं, जो बनाए हुए हैं, पुलिस ने भी बनाए हुए हैं, ANF ने भी बनाए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स ने भी बनाए हुए हैं। वो उनको उधर भेज दिया जाता है रिहेबिलिटेशन के लिए और उनको ऐसा डायरेक्टली, क्योंकि वो उनको बेसिकली ट्रीट किया जाता है एज ए इफेक्टिव, नॉट एज ए क्रिमिनल। क्रिमिनल इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादातर अब अगर किसी के पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको फिर रिहेबिलिटेशन में भेज दिया जाता है। सर प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन के हवाले से मेरा एक सवाल है कि आपने फरमाया कि जिनके केस प्रूव हो जाता है उनकी प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं गवर्नमेंट, तो सर एक सवाल ये कि क्यों एक्यूज्ड जो है जो उनके साथ कैरी करता है या डिपार्चर है, अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो ज़ाती उनका घर है उससे बेनिफिट लेके नहीं बनाई
تو سر اس کے لیے کیا پریونشن ہے؟ کیا سر میں یہی کوشچن یہی ہے کیونکہ وہ ڈیپتھ میں تھا, میں آپ کو اس میں جاننا نہیں چاہ رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی 3 سال کے لیے کنوکٹ ہو جاتا ہے, ایک تو ڈائریکٹ ایکیوزڈ, اس کی فیملی, اس کے فرینڈس, اس کے ایسوسیٹس, اس کی پارٹنرشپ میں کوئی بھی بندہ ہے, اس کو وہی ٹرائل کورٹ نوٹس کرتی ہے, اور نوٹس کر کے وہ پورا ٹرائل کنڈکٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے سمری پروسیڈنگ کہ آپ کسی کی پراپرٹی یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اوے دی انٹائر پراپرٹی اینڈ یو آر ناٹ گیونگ, اس طرح اس کا پورا ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل ہونے کے بعد ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی بالکل میں اس کے ساتھ پارٹنر ہوں, لیکن یہ پراپرٹی میں نے اپنے اس سورس سے بنائی ہے, تو وہ پھر ریلیز ہو جاتی ہے. بالکل ریلیز ہو سر جاتی ہے. ایک اور سوال, آپ نے جس طرح فرمایا کہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کر دیا نارکوٹکس ایکٹ میں. اب 2 پولیس پرسنل کی آپ نے بات کی کہ 2 پولیس پرسنل وٹنس ہونے چاہیے. سر تو وہ 2 پولیس سے مراد آپ کے نارکوٹکس کنسٹیبلان تھے یا پھر پولیس کے یہ جو 19 کے جو ایکٹ ہے نا, ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی تھوڑا سا آپ پہلے اچھا آپ نے سوال کر دیا اس بات پہ. یہ بیسیکلی فیڈرل لا ہے, 1997 ایکٹ نارکوٹکس فیڈرل لا ہے, لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد آلموسٹ اب کے پی نے اپنا لا بنا لیا, پنجاب نے اپنا لا بنا لیا, سندھ نے اپنا بنا لیا, اور بلوچستان نے بھی لاسٹ ویک پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں, اپنے پروونشل اسمبلی میں یہ لا کی کر دی. وہ اپنا لا بھی بنا لیا, بنا سکتے ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس پاور ہے پروونشل اسمبلی کے پاس. اور اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن جب میں ہی تھا میں نے کی تھی, کانسٹیٹیوشن پٹیشن پڑھی ہوئی ہے کہ یہ فیڈرل لا ہے تو یہ یونیفارمٹی میں ایک طرح ہونا چاہیے, کیونکہ کے پی میں کچھ سزائیں ڈفرینٹ ہیں اور سی این ایس ایکٹ میں ڈفرینٹ ہیں, کمپیٹیبل نہیں ہے. اب کے پی جو ہے وہ صرف کے پی کی حد تک ہے, جو فیڈرل لا ہے وہ پورے پاکستان کی حد تک ہے. جو ہمارا فیڈرل لا ہے سی این ایس ایکٹ 1997, یہ اپلیکیبل ہے ہائی سی میں بھی, ایئر میں بھی, جہاز کے اوپر بھی ہوں, آپ ہائی سیز میں بھی ہوں, آپ بارڈرز کے اوپر بھی ہوں. جو پروونشلس لا ہیں وہ صرف اسی کی حد تک ہے. اگر آپ اٹک سے ادھر آ جائیں تو آپ نہیں پکڑ سکتے, اگر آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو آپ نہیں پکڑ سکتے, اگر آپ بارڈر پہ چلے جائیں تو آپ نہیں پکڑ سکتے. جورسڈکشن ڈفرینٹ ہو جائے. تو جو یہ خیر ڈفرینٹ ٹاپک ہے, کبھی ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا. سر اس سے ملتا جلتا ایک اور غلط فہمی ہے کہ سر اگر کے پی کا بندہ ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ اٹک سے ادھر آ کے پھر نہیں پکڑ سکتے, اب ایک کے پی کا بندہ ہے وہ کیری کر رہا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, تو جورسڈکشن تو چینج ہو گئی, ان کی سزائیں الگ ہے, جہاں سے پکڑا جائے گا اس کی جورسڈکشن ہوگی, ان کی سزائیں الگ ہے, تو وہ یہ کلیم کر سکتا ہے. یہ بات ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پٹیشن پڑھی ہوئی ہے, میں نے خود یہ جب کر رہا تھا تو این ایف کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے پٹیشن ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, میں نے کی. اس میں نوٹسز ہوئے, یہی کوشچن تھے, یہی سی بات پہ تھے. پہلے تو کوشچن یہ تھا کہ جی لیجسلیچر اسمبلی کے پاس پاور ہے, دے کین میک دا لا, آپ کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمپیٹنس آف دا لیجسلیچر ہم نہیں چاہتے, وہ اسمبلی بنا سکتی ہے. اب جب 2 لا بن جاتے ہیں, 2 ایک جیسے لا بن جاتے ہیں, تو پھر انٹرپریٹیشن کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کون سا لا زیادہ افیکٹو ہے, کون سا لا زیادہ کنٹرول کر رہا ہے. اس میں اگر دونوں لاس کو اگر آپ بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیڈرل لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہے تھرو پاکستان, پروونشن ایک جگہ کے اوپر ہے. پھر جب کنفسکیشن آف پراپرٹی کرتے ہیں کہ بندہ رہتا ہے کراچی میں اور اس کی پراپرٹی لاہور میں ہے, تو اس کی کنفسکیشن کے لیے ایک صوبہ دوسرے صوبے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو لیٹر لکھے گا. نمبر 2, جب آپ یہ انٹرنیشنل لا ہے, اس کا امپیکٹ ہے, تو فارن آفس میں صرف اور صرف یونائٹیڈ نیشنز کو, پوری دنیا کو جب ڈیل کرتے ہیں آپ فارن کنٹریز میں افینڈرز کو اور ان کی پراپرٹی کو, وہ صرف فارن آفس ڈیل کرتے ہیں. پروونسز یہ سبجیکٹ ابھی شاید ہو جائے گا. سر میں نیکسٹ سوال یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سی آر پی سی, اس سے پہلے بھی لیکچر میں نے پوچھا کہ سی آر پی سی میں ہمیں ایک پروویژن پرووائڈ کرتے ہیں 526 کا کہ وہ کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں, وہ انٹر پروونشل بھی ہو سکتے ہیں. سر تو وہ یہ ایکیوزڈ یہ ڈیفینس لے سکتا ہے کہ جی میرا وہ نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے باقی دوستوں کو موقع, وہ نارملی جب جہاں پہ کرائم کمٹ ہوتا ہے اسی ایریا کی جورسڈکشن. اب کرائم اگر لیٹس, میں نے آپ کو بتایا نا کہ مینوفیکچرنگ اگر یہ ہو رہی ہے ایک ملک میں, اے میں ہو رہی ہے, وہاں سے اسمگل ہو کے بی میں آتی ہے, وہاں سے سی میں آتی ہے, اور ڈی میں جا کے پکڑی جاتی ہے کنسائنمنٹ, تو جو ڈی ہے اس کی جورسڈکشن ہے. یہ پیچھے آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ پکڑ سکتے ہیں. سر اگر پبلک پلیس پہ کوئی پولیس والا کسی کو روکتا ہے اور اسے یہ نارکوٹکس جو سے نکلتی ہے سرچنگ کے دوران, تو کیا وہ پولیس والے جو اس کی کوئی اس کے پاس صرف یہی ایویڈنس ہے کہ اس سے میں نے یہ برآمد ہوئی یہ چیز وہ دے دیتا ہے, وہ وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں بناتا, کوئی پکچر؟ ہاں جی, یہ ویڈیو والی آپ نے یاد کرا دی.
वीडियो पिछले 3-4 साल से एक केस था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का केस था, वो मैं ही कर रहा था, उसमें एक बंदा पकड़ा गया। तो काजी फैजीसा साहब थे, तो उन्होंने कहा जी इसमें वीडियो किधर है? मैंने कहा जी एयरपोर्ट पे तो वीडियो जरूरत नहीं है और देयर इज नो नीड फॉर वीडियो, क्योंकि एविडेंस में कोई नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वीडियो होगी। उसके बाद वो बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई और फिर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आप वीडियो बनाएंगे, जब भी आप रिकवरी करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मली 80% 90% अक्यूज पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं घर पे था, मैं फलां जगह पे था और ये मुझे पकड़ के प्लांट कर दी गई है। उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, हमने भी काफी दी है। अब हम पहले पूछते हैं पहले इसमें वीडियो बनी है कि नहीं बनी। अगर वीडियो ना बने तो हम भेज भी दे रहे हैं, हम एक्विट भी कर रहे हैं। तो वीडियोस को मैंडेटरी कर दिया है, ये इसी चीज को रूल आउट करने के लिए कि फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड तो नहीं प्लांटेशन हुई। ये भी नया, ये एक नया प्रिंसिपल अभी ये तकरीबन पिछले 2 सालों 3 सालों से ये वीडियो वाली बात आई, पहले नहीं थी। जी 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 हाँ बिल्कुल। वो भी लेटेस्ट अभी पिछले हफ्ते एक जजमेंट आई है, ये आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जी नहीं बन सकता, लेकिन उसके ऊपर रिव्यू फाइल किया हुआ है। लेकिन लॉ में ये मौजूद है कि वही ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है, लॉ में कोई ऐसी बैन नहीं है किसी किस्म का। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर ये नार्कोटिक्स एक शेयर्ड व्हीकल से रिकवर होते हैं जिसमें 2-3 लोग हों, 2 लोगों को इल्म हो इस चीज का और एक बंदा उसकी रियल पोजीशन में मतलब नार्कोटिक्स हो, तो फिर इसमें लायबिलिटी को कैसे? पैसेंजर का ये सेटल हो गया लॉ। पैसेंजर 10 साल में भी करता रहा हूँ, तो हम भी खड़े होकर कहते थे, हमसे जज साहब पूछते थे हाँ जी ये ड्राइवर है, ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल, चाहे जो मर्जी हो जाए, ही इज रिस्पॉन्सिबल। जो फर्स्ट सीटर या सेकंड आपका रेयर सीट पे बैठा हुआ है उसे हम पैसेंजर कहते हैं। तो पैसेंजर का कुछ नहीं लिखा तो वो बरी हो जाता है, उसमें लॉ सेटल है। क्या ऐसा है कि वो जो पीछे वैगन थे मेन कोर्ट से ऐसे लोगों को किस वो रेत भी पकड़े जाते हैं। आप जो कह रहे हैं सोर्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं होता। सोर्स ने एक बंदे को हायर किया, उसने फलां जगह से अफगानिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ से बंदे से वो किया और खुद वो कहीं बहुत बड़ी बिजनेस कर रहा है, वो किसी जगह पे बैठा हुआ है, उसका तो कहीं भी नहीं है। उसका डायरेक्ट अगर पकड़ भी ले, पकड़े बिल्कुल ये बात पकड़ते हैं तो फिर वो कोर्ट सबसे पहले पूछती है कि पोजेशन किसके से निकला, वो कहते हैं जी फलां बंदे से, तो उन्होंने कहा जी पोजेशन जिससे निकला है तो ही इसके प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसका भी कॉन्शियस पोजेशन था। सोर्स पकड़ते हैं आप, अब शुरू किया हुआ है, ऑर्डर करते हैं हर कोर्ट में, हर रोज आप ऑर्डर करते हैं कि जिसका सोर्स भी, अब ये होता है कि क्लोज ना करें इन्वेस्टिगेशन, ये सोर्स तक जाए कि कहाँ से आएगी। वो फिट केस में यही है कि बंदे को आपने पकड़ा और उसमें उसका कॉन्शियस पोजीशन नहीं है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग नहीं है, उसमें कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटीज है, उसमें कोई और इशू है, उसमें हो सकता है। हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, आप एक केस के ऊपर सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल क्रिमिनल लॉ में नहीं कर सकते, हर क्रिमिनल केस के अपने प्रिंसिपल हैं। सर रिसेंटली बहुत सारी हेरोइन पार्टीज में रेड हुई और वहाँ से ना बहुत सारे ड्रग्स जो है वो सीज हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो इन ड्राइवर है या ग्रीन राइडर है या फुल पार्टनर राइडर है उनको नहीं पता पार्सल में क्या चीज़ है, लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि उनकी बेल रिजेक्ट हुई और जो 3 क्लास थी जो महसूस करता है अब वो उसमें वो जी मैंने आपको बात की है, अब आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पोजीशन किसके कब्जे से निकला। अब बात ये है कि अगर आप इस तरह छोड़ना शुरू कर देंगे सबको, ड्राइवर भी, राइडर भी, सेंडर भी, तो फिर कन्विक्टिव हो सकता है कि ये बहुत सीरियसली इशू है हमारे माशरे में, ये बहुत सीरियस इशू है। मैंने खुद अपनी एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें मैंने पूरे स्कूलों में बैन किया है राइडर्स को, और जितने भी प्रिंसिपल हैं उनसे अंडरटेकिंग ली है, एफिडेविट लिया है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन से कोई ड्रग निकलेगी तो आपके खिलाफ पर्चा होगा, और पर्चा भी प्रिंसिपल के खिलाफ होगा, क्योंकि जो डिलीवरी वाले हैं इस वक्त नारकोटिक्स की बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो भी केयरफुल हो। सर बट लास्ट ईयर कराची की एक पार्टी को रेड हुई थी और वो वीडियो बनी थी, लेकिन बाद में जितने भी लोग पकड़े गए थे उनको इस चीज़ में बेल मिली कि
पुलिस वाले पास नहीं बेल जो है ना वो दैट इज नॉट एक डिस्क्रिप्शन है, कोई चीज बनती है, देखिए बंदा ट्रायल में आता है तो वो कन्विक्ट हो जाता है। कि बेल हमारे मुल्क में थोड़ा सा सख्त किया हुआ है हर चीज को, जी इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली बेल तो सीनियस क्राइम में भी बाहर पूरी दुनिया में पुलिस बॉन्ड लेके छोड़ देती है कि आप ट्रायल ज्वाइन करें, तो कन्विक्शन के बाद वो कर लेते हैं। सर अगर पुलिस खुद इन्वॉल्व हो तो इनके खिलाफ एक्शन लें अगर आपको पता हो। और खुद पुलिस वाले इन्वॉल्व है बेटा, आपने देखे नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं पुलिस वाले भी, और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो डेफिनेटली दे आर चार्ज। अगर पुलिस वाले इन्वॉल्व हों और जो एक बंदा है नॉर्मली ऑर्डिनरी पर्सन वो कन्विक्ट हो जाए, उसके बाद 2-3 साल बाद उसका डिफेंस भी आ जाए, फिर क्या फायदा है? वो 3 साल तो जेल में काटते हैं। नहीं, वो इसीलिए बेल का कॉन्सेप्ट मैंने यही कहा कि बेल का कॉन्सेप्ट भी यही है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको डे फर्स्ट में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट नहीं की जा सकती जब तक है। और इन सच लाइक केसेस स्पेशली नारकोटिक्स में नॉर्मल में आप कर लेते हैं कि अगर हर केस में अगर आप बंदे को पहले दिन ही प्रिज्यूम करेंगे ही इज इनोसेंट तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नारकोटिक्स के केसेस में लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंट है, वेरी हार्ड है, इसीलिए किया है कि ये लाइफ है। आप खुद यंग हैं, आपको पता होगा यहाँ पे कि हमारा भी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है यहाँ पे बहुत ही डेंजरस है। और आपको प्रॉब्लम क्या आ गया कि स्कूलों में चला गया, आपको शायद नहीं पता, स्कूल के बच्चों में चला गया। लेकिन सर बात ये है ना कि स्कूल यूनिवर्सिटीज में तो हम राइटर्स को बैन कर सकते हैं जैसे आपने बोला, लेकिन अगर एक राइटर एक जैसे पार्टी की भाई ने बात की तो पार्टी पे अगर एक राइडर आता है, अब उसको तो नहीं पता अंदर क्या है, तो बात तो वही आ गई, इलीट तो फिर भी बच गया जिसने मंगवाई थी, तो फिर वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन में वो ओपन करके तो नहीं देख सकता ना, उस पे पोजेशन की अगर ये बात पोजेशन की है तो फिर उसे कैसे पता चलेगा? उसके लिए फिर प्रिकॉशनरी मेजर इसीलिए कहे हैं कि ये लोगों को पकड़ते हैं तो फिर कोई बाहर बंदा ही नहीं कहेगा कि मेरी ये चीज उठा के आप ले जाए, वो चेक करेगा कि इसमें क्या है। सर राइडर कैसे चेक कर सकता है? नहीं देखिए, फूड आपने मंगवाया है, लेट्स सपोज आपने फूड मंगवाया है, किसी भी KFC मंगवाया है, तो KFC होना चाहिए ना। अगर वो कोई और चीज कैरी कर रहा है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन सर जैसे ड्राइव वाले कोरियर फैसिलिटीज देते हैं ना, उसके अंदर तो वो उनसे लिखवा लें कि इस कोरियर में ये पड़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल है। होता ये है कि आप कोरियर बुक कर रहे हैं, तो मैं कोरियर लेके जा रहा हूँ, तो मैं कोकर साहब से कहूँगा कोकर साहब मुझे लिख के दें कि इसमें ये फलां चीज है, और उनसे साइन ले लें, दैट्स ऑल। इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर उसके पास चांस हो गया ना कि अपनी इनोसेंस को वो बताया नहीं, मेरा इसमें लेना देना नहीं था, मैंने तो सिंपल वो चीज उसने प्रूव करनी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो उसको डिस्चार्ज कर सर ये बुनियादी तौर पे एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है का और CNSA के जो केसेस हैं, और इसमें सस्पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बेल के हवाले से, कन्विक्शन के हवाले से। लेकिन सर इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स की कोई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है? बिल्कुल है, आप देखें लॉ पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है, CNS में भी लिखा हुआ है, CNS में तो क्रिटिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉल्स केस किसी के ऊपर रजिस्टर करेगा, या आपने अच्छा किया याद कर दिया, तो जितनी सजा उस फॉल्स, अगर उसने 5 kg डाली है और वो प्रूव होगी कि फॉल्स है, तो 5 kg की सजा उस बंदे को मिलेगी, उस ऑफिसर्स को मिलेगी। सर ये है, बिल्कुल है, लेकिन वो वही सर अगर एक बंदा है वो उसके पास पोजेशन भी है ड्रग्स की, ठीक है, नारकोटिक्स की, और वो यूज भी कर रहे हैं, अब जो यूज वाला है उनके लिए तो हमारा लॉ मोस्टली उनको रिहैब करते हैं, और जो ड्रग डीलिंग कर रहा है, पोजेशन है, ये तो क्राइम है, फिर इसको कैसे डील करेंगे? उसको कौन सी पनिशमेंट पहले मिलेगी? रिहैब किया जाएगा? रिहैब भी किया जाएगा और उसको पनिश भी किया जाएगा, उसको पोजीशन की हद तक पनिश किया जाएगा, और पीने की हद तक उसको जब अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रिहेबिलिटेशन भी हो। भरे हुए हैं ये वो नॉर्मली अब बहुत ज्यादा लेडीज इस्तेमाल हो रही है, लेडीज फैमिली वे में होती हैं और उनको दिया जाता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी फैमिली वे में है तो ये इसकी बेल दे दें। आजकल ये बहुत ज्यादा वुमेन प्रोटेक्शन बिल जब आया था एग्जैक्टली, तो उसमें इसको बेलेबल कर दिया था, तो फिर किया जा रहा था, क्योंकि सर मोस्टली वुमेन्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो फिर कहती हैं डिफेंस में कि हमारे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और जिनके माइनर्स होते हैं वो भी एग्जैक्टली बेलें कोर्ट दे रही है ना इसी पे, लेकिन वो यूज हो रही है फिर। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्योंकि आप लोगों ने ड्रग का देखा नहीं, इसका सर्कल आप देखें पिछले
डे फर्स्ट से मैं आपको 20 साल पहले की बताऊं तो 20 साल पहले ये होता था कि कैरियर होता था, जैसे कहते थे कैरियर कि ये लेके जाने वाला है, तो कोर्ट कहती थी ये ना प्रोड्यूसर है, ना सेलर है, ना ये परचेजर है, ये कैरियर है, तो कैरियर की बेल दे देती थी, कहते थे कैरियर है। इसको फिर खत्म कर दिया कि यार अगर आप कैरियर की भी बेल दे देंगे, पीछे से भी बंदा नहीं होगा, तो आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो फिर कैरियर को सख्त करने के लिए कि आप कैरियर के ऊपर वो छोड़ दिया उन्होंने, कहा कि आप पोजीशन पे कैरियर है तो बस बात खत्म हो गई। फिर ये था कि ये ड्राइवर है, अब ड्राइवर 2010 SCMR जजमेंट आ गई, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो ड्राइवर है ही इज इन कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, जो भी व्हीकल से निकलेगा ही इज रिस्पॉन्सिबल। अब वो ये प्ली नहीं ले सकता कि जी मैं तो गाड़ी चला रहा था तो पीछे आके ना, अगर वो सीक्रेट कैविटी में है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो किसी जगह पे पड़ी हुई है और वो उसके कंट्रोल में है वो जगह, उसके सामान की जगह, चाबी उसके पास है, तो देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। जी जी सर, अमूमन ये होता है ना कि इंसान की पोजीशन में उस टाइम में वो नार्कोटिक्स या जो ड्रिंक वगैरह की जो चीजें हैं वो नहीं होते, लेकिन होता वो उस टाइम नशे में होता है, लेकिन वो उस वजह से भी कभी कभार मतलब वो सजा मिल जाती है उसे। तो आपने समय कहा था कि पोजीशन ये ट्रायल की बात है, वो खोकर साहब आपको बताएंगे कि जब कोई बंदा नशे में पकड़ा जाए तो फिर उसके बाद उसका मेडिकल होगा और ये आप साबित कर देंगे नशे में था और दैट एलिमेंट टाइम हो ये तो वो उसका डिफेंस बन सकता है। सर इनसेन मतलब इनसेनली सॉरी, अगर कोई बंदा ड्रग्स मतलब वो अभी होश में नहीं है, फिर वो कोई भी वो फिर कॉन्शियस पोजीशन में नहीं है, कॉन्शियस है ही नहीं, तो वो तो उसके ऊपर नहीं आएगा। वो यही बात है कि कॉन्शियस पोजीशन जो है आपको साबित करना पड़ता है। एक तो फिजिकल है ना, वो कॉन्शियस नहीं है, बीमार है, एक बंदा सोया हुआ है, एक बंदा कोई काम कर रहा है, तो उसकी गाड़ी में कोई पीछे कोई चीज रख देता है, तो ये चीजें सारी ट्रायल की हैं, आपको साबित करना होती है कि कैसे है। कौन सी किस पॉइंट के ऊपर? वीडियो के बारे में बहुत सारी जजमेंट है, आप उठाएं नेट पे जाएं, आजकल तो हर दूसरे दिन आ रही है जजमेंट। ये 2025 की 3-4 जजमेंट है, मुझे याद नहीं है उनके, लेकिन हर दूसरे केस में हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने वीडियो को मैंडेटरी कर दिया, ऑल्दो लॉ में मौजूद नहीं है, सिर्फ इसी प्रोटेक्शन के लिए कि पुलिस और ANF वाले या बाकी एजेंसियों वाले एक्सेस न करें। तो बहुत ज्यादा था कि प्लांट कर दी किसी के ऊपर और 2 विटनेस पुलिस के डाल दिए तो बंदा तो क्या, इसको दूर करने के लिए तो बहुत सारी जजमेंट आप नेट पे जाएंगे तो नंबर ऑफ जजमेंट है। सर ये सुपरदारी के हवाले से सवाल है कि सर सुपरदारी आपने फरमाया कि सीक्रेट कैविटी से अगर कोई माल निकले तो उसकी तो पॉसिबल ही नहीं है सर। अब सेक्शन 74 में बैन है, लिखिए आप पढ़ेंगे जी सेक्शन 74 है। सर मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सवाल जो है कि अब ड्राइवर आपने फरमाया कि उस गाड़ी की मतलब सुपरदारी हो नहीं सकती, अब ड्राइवर के पास ये राइट होगा कि वो ये प्ली ले लें कि जी मैंने नहीं किया, किसी और ने यही जाके लेते हैं नॉर्मली, तो साहब नॉर्मल ड्राइविंग में यही लेते हैं। फिर दूसरा बंदा कैसे कर सकता है? मतलब सर खुफिया खाना बनाता है, ये 90% कर रहा है, मैं सर तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ सर, हमारे KP में ये चलता है, मैं KP से बिलोंग करता हूँ, हमारे KP में ये चलता है कि अगर मैं कोई ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं बस स्टैंड से या गाड़ी ले आता हूँ, तो सर अक्सर हमारा सामान जो होता है घर होते हैं तो अंदर जाके गाड़ी को लोड करते हैं, तो सर फिर हम ट्रेवल करते हैं इस तरह। तो अब सर मैंने घर में गाड़ी अंदर लेके गया हूँ, ड्राइवर तो नहीं लेके जा सकता, मैंने कहीं नीचे से या बॉनेट के नीचे से या कहीं से मैंने फिक्स कर दिया सर, अब ये तो सीक्रेट कैविटी है, अब इसमें सर कौन सा एप्लीकेबल होगा? ड्राइवर होगा। ये बात जो आपने की, ये मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मूसा साहब जज थे, तो केस में मैंने बहुत ज़्यादा शोट किया कि सर ये ऐसे होता है ये, तो उन्होंने मुझे ये मिसाल दी कि इतवार वाले हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है तो हम जजेस यहाँ से लाहौर इकट्ठे जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इकट्ठे बैठ जाते हैं गाड़ी में, तो कहते हैं अगर एक गाड़ी में मैं बैठ जाऊँ और ड्राइवर 10 kg रखते उसके अंदर, तो मुझे तो नहीं पता, जज साहब ने कहा मेरी गाड़ी में बैठ जाऊँ, मैं बैठ के जो ही मैं मोटरवे पे जाऊँगा तो मुखबर खास ने इतला दी होगी, तो आपने रोक लेना, आपने रिकवरी कर लेनी है, मेरे पास डिफेंस क्या है। ये एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं ना, तो डिफेंस इस पे वाकई बड़ा मुश्किल है उनका। ये नॉर्मली क्योंकि खोसा साहब ने बहुत काम किया नारकोटिक्स के ऊपर, मुझे भी बहुत टाइम रहा उनकी 7 साल उनकी कोर्ट करता, तो वो ये मुश्किल काम है ये जो आप बात कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि डिफेंस क्या है, मेरा जज क्या डिफेंस होगा, वो कहते हैं मेरे पास कोई डिफेंस नहीं, लॉ में लिखा हुआ है कि हम बैठे हुए गाड़ी में और पोजीशन में है, तो ड्राइवर अगर मैं चला रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लॉ सख्त है ना, इसमें इफ एंड बट्स बहुत कम है।
सर अगर किसी को फंसाना हो तो अपने साथ गाड़ी में उसको लेके जाए। उसको पता होगा ना ये मेरे मैं इसके साथ बैठना या नहीं बैठना। आप कहते हैं बहुत मैसेज सर फिर वो पहले दोस्त बनेंगे ना दुश्मन बने ही क्यों? थैंक यू बेटा। आप लोग 1 मिनट बैठेंगे। जैसा भी मैं सिर्फ कल का आपको शेड्यूल बता दूं फिर कल 11 बजे आप तशरीफ लाएंगे और कोशिश किया करें जो टाइम दें क्योंकि